பதினாயிரங்களில் சிறந்த என் நேசரே, சாரோனின் ரோஜாவே, பள்ளத்தாக்கின் லீலியே, பதினாயிரங்களில் சிறந்த என் நேசரே. அந்த அழக ஆராதிப்பேன், அந்த அழக போற்றிடுவேன். என் உள்ளத்தை கவர்ந்தவரே, உம்மை என்னாலும் உயர்த்திடுவேன். அந்த அழக ஆராதிப்பேன், அந்த அழக போற்றிடுவேன். என் உள்ளத்தை கவர்ந்தவரே, உம்மை என்னாலும் உயர்த்திடுவேன். பிரியமானவர்களே, இயேசு நாமத்தினாலே உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்லுகிறேன். இன்னைக்கு நாம் தியானிக்க வேண்டிய வசனம் ஆதியாகமம் 27ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனம். தேவன் உனக்கு வானத்து பனியையும் பூமியின் கொள்ளுமையையும் கொடுத்து மிகுந்த தானியத்தையும் திராட்சை ரசத்தையும் தந்தருளுவாராக. இந்த அருமையான ஆசீர்வாத வசனம் ஈசாக்கு யாக்கோபுக்கு சொன்ன ஆசீர்வாதம். ஆனா எந்த சூழ்நிலையில சொன்னாருன்னு நீங்க 27ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனம்லாம் நம்ம வாசித்து பார்த்தோம்னா, யாக்கோபு ஏசாவை போல வேஷம் மாறி தன் தகப்பனை ஏமாற்றி பெற்றுக்கொண்ட ஆசீர்வாதம். ஆதியாகமம் 25ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனம் கர்த்தர் சொன்ன காரியம் என்னன்னா, மூத்தவன் இளையவனை சேவிப்பான். தேவனுடைய சித்தமே யாக்கோபை ஆசீர்வதிப்பது. கற்பத்துல இருக்கும் போதே கர்த்தர் யாக்கோபை தெரிந்து கொண்டார். புதிய ஏற்பாட்டுல வாசிக்கிறோம், யாக்கோபை நேசித்தேன், ஏசாவையோ வெறுத்தேன்னு சொல்றாங்க. அப்படிப்பட்ட யாக்கோபு தெய்வ சித்தம், கர்த்தர் அவர் ஆசீர்வதிக்கணும். ஆனாலும் இந்த ஆசீர்வாதத்தை துரிதமா பெற்றுக்கொள்ளணும்னு யாக்கோபு இந்த செயல்படுறத நம்ம பார்க்கிறோம். ஏசாவும் வர்றாரு ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள. அப்போ பதர்தர் ஈசாக்கு, உன் ஆசீர்வாதத்தை பூரா நான் தம்பிக்கு கொடுத்துட்டேனே, என்னை வஞ்சித்துட்டானே அப்படின்னு சொல்றாரு. அவர் தகப்பன்னு சொல்லக்கூடிய வார்த்தை, என்னை ஏமாற்றி ஆசீர்வாதத்தை எல்லாம் வாங்கிட்டு போயிட்டானே அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு. இப்படி அவர் செய்ததுனால என்ன விளைவுங்கிறதையும் நம்ம பின்னால உள்ள அதிகாரத்தை வாசிக்கும் போது தெரியும். அப்ப தேவ சித்தம் நிறைவேறணும்னா நாம காத்திருக்க வேணும். சில நேரங்கள் பொறுமை ரொம்ப அவசியம். தேவ சித்தம் நம்ம வாழ்க்கையில நிறைவேறதுக்கு நம்ம அவசரப்படக்கூடாது. கர்த்தருடைய சித்தம் நிறைவேறதுக்கு கர்த்தருடைய கருத்துல நம்ம ஒப்பு கொடுத்து அவர் நம்ம உயர்த்தும் வரைக்கும் அவருடைய பலத்த கருத்துக்களை அடங்கி இருக்கணும் அப்படின்னு யாக்கோபு சொல்லியிருக்கு. இப்படி அவர் ஏமாத்ததுனால என்ன ஆகுதுன்னா, அவர் தன்னுடைய தகப்பன் தன் தாயையும் விட்டுட்டு பிரிஞ்சு போகக்கூடிய சூழ்நிலை. ஏன்னா ஏசா ரொம்ப கோபமா இருக்கிறாரு யாக்கோபு மேல. என்னைக்காவது ஒரு நாள் எங்க அப்பா மறைக்கும் போது நான் என் தம்பி யாக்கோபையும் கொள்ளுவேன் அப்படிங்கிறாரு. அதனால அவங்க அம்மா என்ன பண்றாங்க, பயந்து போய் அவன் யாக்கோபு அவங்களுடைய சகோதரன் வீட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க. அப்போ இப்ப எங்க போறாருன்னா, யாக்கோபு அவங்கள்ட்ட மாமாட்ட போய் சேர்றாரு, லாபான்ட்ட போய் சேர்றாரு. அவருக்கு 2 பெண் பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க. அதுல இளையவள ராகேல ரொம்ப நேசிக்கிறாரு. அப்படி நேசிக்கும் போது அவர் சொல்றாரு, 7 வருஷம் அந்த இடத்துல வேலை பார்க்கறாரு. ஆனா திருமணம் நாள்ல என்ன நடக்குதுன்னா, லாபான் தன்னுடைய இளைய மகளுக்கு பதிலாக மூத்த மகளை அவருக்கு திருமணம் பண்ணி வைக்கிறாரு. அப்போ இவர் சொல்றாரு, ஏன் என்ன இப்படி ஏமாத்திட்டீங்க அப்படின்ட்டு. இவர் ஒரு இடத்துல ஏமாத்துறாரு, அப்ப இவரே இங்க ஏமாற்றப்படுகிறாரு. அப்போ மறுபடியும் சொல்றாரு, நான் ராகேலுக்காக இன்னும் ஒரு 7 வருஷம் வேலை பாருங்க. ஆக மொத்தம் அந்த மாமா வீட்டுல அவர் 20 வருஷம் அவர் அங்க வேலை பார்க்குறாரு, ஆடு மேய்க்கிறாரு. லாபான்னு அவங்க பல கஷ்டத்தை கொடுக்குறாரு. 10 முறை அவருடைய சம்பளத்தை மாத்தி 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 வைக்கிறாரு. ஆனாலும் கர்த்தர் யாக்கோபை ஆசீர்வதிக்கிறேங்கிற சித்தம் இருந்ததுனால அந்த இடத்துலயும் அவர் ஆசீர்வதிக்கப்படுறாரு. அடுத்தது நாங்க பார்க்கணும்னா, இந்த யாக்கோபுடைய பிள்ளைகள் 12 பேர். அந்த 12 பேர்ல யோசேப்பை ரொம்ப நேசிக்கிறாரு. அதனால மற்ற சகோதரர்கள் யோசேப்பை வெறுக்கிறாங்க. அப்ப யோசேப்பு மற்ற சகோதரர்களால வெறுக்கப்பட்டு அவரை
அந்நிய தேசத்துல வித்து போட்டுட்டு அடிமையா வச்சுட்டு இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க, அவங்க தகப்பன்ட்ட உங்க உங்க மகன் யோசேப்பு சட்டதானா இது பாரு, ஒரு துஷ்ட மிருகம் அவனை பச்சித்து போட்டது காட்டுல அப்படின்னு சொல்றாங்க. யாக்கோபு தன்னுடைய தகப்பன் ஈசாக்கை ஏமாற்றினுடைய விளைவுகள் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பாருங்க. லாபான் அவரை ஏமாத்துறாரு. இங்க யாக்கோபுடைய சொந்த பிள்ளைகளை இவர் ஒரு ஆளு தான் ஏமாத்தினாரு, அங்க இங்க 10 பிள்ளைகளும் வந்து அப்பாவை ஏமாத்துது பாருங்க. இது உங்க மகனுடைய சட்டதானா, துஷ்டம் மிருகம் அவரை காட்டுல கொண்டு கொண்டுட்டுன்னு தான் ரொம்ப நேசிச்ச மகன், செல்ல மகன் யோசேப்ப இழந்ததுனால ரொம்ப அழுறாரு யாக்கோபு, ரொம்ப அழுறாரு. இது எல்லாம் வந்து நம்ம யோசிச்சு சிந்தித்து வேதாகமத்துல கொடுத்தப்பட்ட காரியங்களை சிந்தித்து பார்த்தா நம்ம வந்து யாரையும் ஏமாற்றக்கூடாதுங்கிறதையும் ஆண்டவர் நமக்கு வெளிப்படுத்துறாரு இல்ல. அப்போ தெய்வ சித்தம் நிறைவேறணும்னா நம்ம காத்திருக்கணும், அவசரப்படக்கூடாது. தேவன் குறித்த காலத்துல எல்லாவற்றையும் நேர்த்தியாய் செய்து முடிக்கிற தேவன். இதே போல 1 சாமுவேல் 13 அதிகாரத்துல நம்ம வாசிச்சா, அங்க சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி, அவர் தான் ஆசிரியனாவும் இருக்கிறாங்க. அவர் தான் முதல் ராஜா சவுல வந்து அபிஷேகம் பண்றாங்க. ஆனா இந்த சவுல் ராஜா என்ன பண்றாருன்னா 13 அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்துல சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி வந்து கொடுக்க வேண்டிய அந்த சர்வாங்க தகன பலிய சவுல் ராஜாவே செய்யறாரு. இப்ப நம்ம சர்ச்சில் நம்ம இருக்கோம்னா அந்த பாஸ்டர் அவங்க செய்ய வேண்டிய ஆராதனை பிரசங்கம் அது வந்து ஆண்டவரால் நியமிக்கப்பட்டவங்க, அவங்க அதை செய்வாங்க. அவங்க வரலன்னு சொல்லிட்டு சபையார் நம்ம செய்ய முடியாது அந்த காரியத்தை, கர்த்தரால் நியமிக்கப்பட்டவங்க. இப்போ சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி கர்த்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர். அந்த தீர்க்கதரிசி அவர் ஆசாரியர் வர்றதுக்கு முன்னக்கூட்டி அவர் வர்றதுக்கு லேட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு ராஜா சவுல் ராஜா என்ன பண்றாரு, ரொம்ப தைரியமா போய் சர்வாங்க தகன பலியிடுறாரு. அப்போ சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி வந்து சொல்றாரு, நீ மதியமான காரியத்தை செஞ்சிட்டீங்க, இதனால ராஜ்யபாரம் உண்மை விட்டு எடுபட்டு உண்டு தோழனுக்கு கொடுக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவசரப்படுறாங்க, பொறுத்து இருக்கணும். ஆசிரியர் செய்ய வேண்டிய வேலைக்கு ஆசிரியர் தான் செய்யணும். ஆனா இதே சவுல் ராஜா கோலியாத்து வரும்போது, கோலியாத்து வந்து 40 நாள் டெய்லி 40 நாள் வந்து இஸ்ரவேல் ஜனங்களை நிந்திக்கிறான். யாருக்கா தைரியம் இருந்தா என்னோட வந்து சண்டை போடுவாங்க அப்படின்னு 40 நாள் அப்படி சவால் விட்டு கூப்பிடுறாரு. ஆனா அந்த சமயத்துல போக மாட்டேங்காரு பாருங்க. ராஜா அவர் தான் முன்னால நின்று அந்த யுத்தத்தை நடத்தணும். ஆனா என்ன செய்யறாரு, பயப்படுறாரு. கோலியாத்தினுடைய வெளி தோற்றத்தை பார்த்து பயப்படுறாரு. எது அவர் செய்ய வேண்டிய காரியமோ அதை அவர் செய்யல. யுத்தத்துக்கு போய் ஜெயிக்கிறது அது அவருடைய காரியம். ஆனா ஆசாரியன் செய்ய வேண்டிய தகன பலி இவரு தகன பலி. எந்த இடத்துல பொறுமையா இருக்கணுமோ அந்த இடத்துல அவசரப்படுறாரு. ஆனா அவசரப்பட்டு துரிதமா யுத்தம் பண்ண வேண்டிய நேரத்துல அமைதியா 40 நாள் காத்திருக்கிறாரு. அந்த இடத்துல தாவீது ராஜா வந்து ஜெயத்தை பெற்று பண்றாரு. பிரியமானவர்களே, தேவ சமூகத்துல நம்ம காத்திருக்கணும். நம்மளோட வாழ்க்கையிலும் சரி, நம்ம பிள்ளைகளோட வாழ்க்கையும் சரி, கர்த்தாவே உங்க சித்தம் நாங்க நிறைவேறும் வரைக்கும் நாங்க காத்திருக்க எங்களுக்கு கிருபை இருக்காங்க. ஏன்னா காத்திருக்கும் போது கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் வேதம் சொல்லுது, ஒரு நாள் வெக்கப்பட்டு போக மாட்டாங்களாம். கர்த்தர் காத்திரவர்கள் ஒருபோதும் வெக்கப்பட்டு போவதில்லைன்னு வேதம் சொல்லுது. தேவ சமூகத்துல காத்திருப்போம். நம்மளோட வாழ்க்கையில, நம்ம பிள்ளைகளோட வாழ்க்கையில இயேசுவே உங்க சித்தம் நிறைவேறணும். நாங்க எந்த காரியத்தையும் நாங்க எங்க சுய முயற்சியிலையோ எங்களுடைய சுய பிரயாசத்திலையோ சிந்தனையிலையோ நாங்க அவசரப்பட்டு செய்யாதபடிக்கு உங்க சித்தம் நிறைவேற காத்திருக்கோம். எங்களுக்கு கிருபை தாங்கன்னு நம்ம ஜெபிப்போம். தேவன் தாமே இந்த வார்த்தையை ஆசீர்வதிப்பாராக. आमीन। यीशु मसीह आशीष हम अभी कुछ वचन उसके पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद अच्छे समय हमको दिया। धन्यवाद परमेश्वर, आप करने वाले हैं, हमको स्वीकार करने वाले हैं, हमको आशीर्वाद करने वाले हैं। सुनने वाले को ऐसे कीजिए यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज का वचन है उत्पत्ति के किताब 27 चैप्टर वर्स 28। ये उत्पत्ति के किताब में 27 अध्याय में 28 वर्स में हम देखते हैं एसा ने अपने पुत्र
याकूब को आशीर्वाद करता है, बहुत अच्छा आशीर्वाद है। परमेश्वर तुझे चैप्टर 27 वर्स 28-29 में हम देखेंगे, परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करे। तू अपने भाइयों का स्वामी हो। ऐसे करके आशीर्वाद करते हैं। ऐसा अपने पिता याकूब को आशीर्वाद करते हैं। और तेरी नाम के माता के पुत्र तुझे दंडवत करे। जो तुझे शाप दे वे शाप ही शापित हो और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीर्वाद पाए। बहुत अहम आशीर्वाद है, अच्छा आशीर्वाद है। लेकिन परमेश्वर याकूब को कहा था, ये याकूब ने झूठ बोलकर अपना पिताजी से आशीर्वाद लेते हैं। झूठ बोलना, किसी को फंसाना बहुत सारे बड़ा गलती है। याकूब का माँ याकूब को बोल के बेचती है, तू जा अपने पिता से आशीर्वाद दे। ये अध्याय में 27 चैप्टर में स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो इधर सब कुछ मालूम पड़ेगा। 27 चैप्टर में, उत्पत्ति की किताब 27 चैप्टर में हम देखेंगे तो ऐसा ने कहा, उसने कहा, सुन मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, 27 वर्स 2, और नहीं जानता हूं कि मेरा मृत्यु का दिन कब होगा। इसलिए अब तू अपने तर्कस और धनुष लेके ऐसा अपने लड़का, पहला लड़का को ये कहता है, अपने झेटे पुत्र एसा को बुलाकर। ईसाक ने अपने झेटा पुत्र एसा को बुलाकर ये कहते हैं। लेकिन हम उत्पत्ति 25वां अध्याय 23वां वचन में हम देखेंगे तो परमेश्वर की इच्छा क्या है याकूब को आशीर्वाद करने के लिए। चैप्टर 25 और वर्स 23 उत्पत्ति में हम देखेंगे तो इधर लिखा है, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थ होंगे और बड़ा बेटा छोटे का अधीन होगा। यानी ऐसा याकूब का अधीन होगा। लेकिन ये बात सही है, लेकिन याकूब ने अपने पिताजी से झूठ बोलकर आशीर्वाद लिया। उसके लिए याकूब को सब्र नहीं है, धीरज नहीं है, समय नहीं है। और याकूब का माँ भी ये झूठ बोलने के लिए सहायता देती है। तब ऐसा और करने का मैदान में चला गया। तो इधर हम देखें तो उत्पत्ति के 27 वर्स 6 में हम देखेंगे, इसलिए उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसा से ये कहते सुना है, तू मेरे लिए अहर करके उनका स्वादिष्ट भोजन खाना बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मन से पहले आशीर्वाद दूं। अपने पिताजी तेरे बड़े भाई को आशीर्वाद देने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, परमेश्वर आपने कहा ऐसा याकूब का अधीन रहेगा, तो आज मेरे पिताजी ने मेरे भाई को आशीर्वाद करने वाले हैं, आप मेरे को आशीर्वाद करके उसके जो रास्ता है वो रास्ता ढूंढना चाहिए। क्या रास्ता? पहले से ढूंढना चाहिए। बहुत सारे सब लोग लास्ट में जाते हैं, टिकट लेने के लिए लास्ट में जाएंगे तो तत्काल नहीं मिलेगा, वेटिंग मिलेगा, तकलीफ होएगा। अभी 4 महीने का पहले टिकट लेना जरूरी है, तो 4 महीने का पहले उसका जो रास्ता है वो ढूंढ निकालना चाहिए। ऐसा नहीं ढूंढ निकालेंगे, याकूब का जैसा 20 साल तकलीफ उठाना पड़ेगा। याकूब कौन है करके हम पवित्र शास्त्र में देखें तो बड़ा करोड़पति का लड़का है, बड़ा पैसा वाला है, लेकिन अपने मामा के जगह में जाकर 20 साल धूप में वो तकलीफ उठाते हैं। उसको मालूम नहीं मैं क्यों तकलीफ उठाता हूँ। आज इंसान को मालूम नहीं क्यों तकलीफ उठाते हैं। इसने गलती किया, झूठ बोला पिताजी से, मैं ऐसा हूँ करके, मैं बड़े भाई हूँ करके। क्या जरूरत है आज झूठ बोलने के लिए? इसका कुछ भी जरूरत नहीं है। बड़े पैसा वाला है, इन परिवार को इतना विश्वास है, परमेश्वर के आशीर्वाद अहम है, बड़े चीजें कर विश्वास है, लेकिन वो
जैसा पाना चाहिए वो रास्ता नहीं में, वो रास्ता ये लोग ढूंढता नहीं है। याकूब और याकूब का माँ और उनके पिताजी भी बड़े लड़कों को आशीर्वाद देने के लिए चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं याकूब को आशीर्वाद करूंगा। लेकिन उन दिनों से उसके माँ ने याकूब को बोलने का, तेरे को परमेश्वर आशीर्वाद करने वाले, तू कैसा रहना चाहिए, अपने परिवार के अंदर प्रेम करना चाहिए, किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को फंसाना नहीं चाहिए। याकूब ने फंसाया, वो फंसाने के लिए उसका माँ ने उनको आइडिया दिया। अंत में याकूब वापस इसके माँ को मिला के नहीं, पता नहीं 20 साल अपने मामा के जगह में जाके गाय बैल चलाते धूप में। अंत में उसका मामा ने उसको फंसाया। उस मामा के दूसरा लड़की ये चाहता था, लेकिन पहले लड़की उनको दे दिया 7 साल काम करने के बाद। उसके मामा ने, लाबान ने कहा और एक 7 साल तो काम कर। उसके बाद और एक 7 साल काम किया, 14 साल, फिर भी 6 साल काम किया, 20 साल काम किया। जरूरत ही नहीं है। अधिकार से अपने जो नौकर चाकर से आराम से ऐश कर अधिकार करके बैठने वाला इंसान मामा की जगह में जाके, लाबान की जगह में जाके नौकर जैसा काम किया। अंत में मामा के पास कहते हैं मैं नौकर का जैसा काम किया, धूप में काम किया, रात में काम किया। क्या जरूरत था? फंसाया अपने भाई को, इसके लिए इतना तकलीफ उठाया। आप भी नहीं फंसाइए परमेश्वर की प्रजा, किसी को हम नहीं फंसाना चाहिए, किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। जितना हमको होता है उतना हम सब्र कर हमसे झूठ बोलना, जितना हम उसको जितना तक हमको संभाल सकते हैं बिना झूठ से, वैसा हम संभालने का। क्योंकि याकूब ने झूठ बोला अपना पिताजी से। याकूब ने झूठ बोला। याकूब अपने पिताजी इसहाक से निकट गया और उसने उसको टटेल कर कहा, बोल तो याकूब का सा है पर हाथ ईसाई का जान पड़ते हैं। देखो कैसा अपने पिताजी को उसने फंसाया। आप भी मत फंसाइए, आप फंस जाएंगे, और मैं किसी को फंसाया मैं फंस जाऊंगा। तो पवित्र वचन कहता है बहुत सारी तकलीफ उठाया। ओसिया का किताब में हम देखते हैं परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया और रो रो के प्रार्थना किया, मेरे को आशीर्वाद करो परमेश्वर, मेरे भाई मेरा विरोध आ रहा है। जब याकूब ने अपने मामा के घर से कानान देश में जब जा रहे हैं तो बीच में ऐसा अपने लोगों से हारा करके इसको बोल रहे हैं, अपने नौकर चाकर ने बोल रहे हैं, ये साहब आपने भाई आपको मिलने के लिए आ रहे। तभी ये बहुत डर गया, क्योंकि मैं उसको फंसाया है, आज मेरे को मार डालेगा, मेरे बच्चों को मार डालेगा, मेरा औरत को मार डालेगा। और ओसिया का किताब में प्रेयर कर रहे हैं, उत्पत्ति की किताबें में प्रेयर कर रहे हैं परमेश्वर से, मेरे को आशीर्वाद करो परमेश्वर, मेरे पास जो आशीर्वाद है ये झूठा बोलने वाला, झूठ बोलकर आया हुआ आशीर्वाद है, और मैं मेरे भाई को फंसा के आया हुआ आशीर्वाद है, लेकिन मेरे को अब सच्चा सा आशीर्वाद करो। रात भर प्रेयर करता है। अंत में परमेश्वर कहता है तेरे नाम याकूब नहीं है, इजराइल है। इजराइल का मतलब है तू आशीर्वाद पाया हुआ इंसान है। आपको आशीर्वाद पाया हुआ इंसान चाहिए, वो वर्ड चाहिए, परमेश्वर से प्रेयर कीजिए, परमेश्वर से किसी को फंसाइए, किसी को झूठ मत बोलिए। तो जिसी को हम झूठ तकलीफ उठाएंगे, बहुत सारा दुख हो जाएगा, बोझ हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं होने के लिए परमेश्वर आपसे बात करते हैं, बोझ नहीं होएगा, तकलीफ नहीं होगा, किसी को नहीं फंसाने का, किसी को झूठ नहीं बोलने का। कितना हो सकता है सच्चाई बोलिए, कितना हो सकता है, क्योंकि दुनिया पूरा झूठा से फैला हुआ है। लेकिन अपने को जितना हम हो सकते हैं हम सच्चाई बोल सकते हैं, किसी को नहीं फंसाना चाहिए। फंसाना चाहिए, जितना हो सकता है हम झूठ नहीं बोलना चाहिए। रहते समय में आपको जैसे या आशीर्वाद पाया हुआ उनको दादी है, उनको और बड़े पैसे वाले में इनको बहुत तकलीफ, बच्चों से भी तकलीफ उठाया। उसके लड़की को किसी ने खराब कर दिया और वो से जाके कहते हैं मेरे को बहुत सारे हुआ, लेकिन मैं ये शांति से नहीं जीवन बिताया, बहुत सारी तकलीफ उठाई, मेरे को बहुत सारी तकलीफ आया। उनके लड़कों लोग ने अपने भाई को ही भगा दिया, भेज दिया। याकूब के परिवार में ऐसा बहुत सारे दुख संभव हुआ। आपके परिवार में, मेरे परिवार में ऐसा संभव नहीं होना चाहिए। कर करो, पवित्र शास्त्र में लिखा है मेरे परमेश्वर के प्रजा, इसके लिए हम किसी को नहीं फंसाएंगे, हम किसी को झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ बोल के आशीर्वाद नहीं चाहिए, वो हमको तकलीफ लाएगा, वो हमको उदास लाएगा, उनको बोझ लाएगा, हमारे बच्चों को भी तकलीफ लाएगा। ऐसा हमको नहीं चाहिए। हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हम किसी को नहीं फंसाएंगे, किसी को झूठ नहीं बोलेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे।
हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, याकूब जैसा हम किसी को नहीं फंसाएंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमारे से कितना होता है हम झूठ नहीं बोलेंगे। उसके लिए आप हमको सामर्थ्य दो परमेश्वर, हमको आशीर्वाद को परमेश्वर। याकूब ने बहुत सारे आशीर्वाद पाया, लेकिन बहुत सारे तकलीफ भी पाया। हमको तकलीफ नहीं चाहिए, हमको बोझ नहीं चाहिए, नुकसान नहीं चाहिए, हमको आशीर्वाद चाहिए। हम किसी को नहीं तकलीफ देना चाहिए, हम किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमको इसके लिए आप ताकत दीजिए परमेश्वर, इसके लिए हमको आशीर्वाद दो परमेश्वर। बिना आपका हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, बिना आपका हम किसी को, हमको ताकत नहीं है परमेश्वर। हम किसी को फंसाना नहीं चाहिए, हम किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो काम नहीं चाहिए, वो धंधा नहीं चाहिए। आप आशीर्वाद कीजिए, सुनने वाले को आशीष कीजिए, सुनने वाले को तकलीफ दूर कीजिए, बीमारी दूर कीजिए, आशीष कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन।